10 starting the record. Okay, now today we will cover the types of classes, method overloading and method overriding. Okay, yes, what is method overloading and method overriding? Yes, what is the method overloading and method overriding? चलो कौन बताएगा मुझे? Who will tell? Method overloading and overriding. Yes, fast चलो. Method overloading, method overriding. This is the same concept which you have learned in your previous subjects, Java, then C++. Okay, the concept is same. Logic is also same, only syntax different होगा, but syntax is almost same ही है. Yes, बताओ मुझे what is method overloading and method overriding? मैं आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes or no? Yes or no? Yes. हाँ चलो बताओ व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग. जो जो आपको याद है वो बताओ. नहीं परफेक्ट होगा तो भी चलेगा. जस्ट गिव दी जो भी आपको दिमाग में. ओवरलोडिंग मतलब सेम मेथड का नेम पर उसके अंदर पैरामीटर डिफरेंट होता है. वेरी गुड. ओके, एंड ओवरराइडिंग मतलब नेम और पैरामीटर्स दोनों सेम. हाँ बस गुड, इतना ही तो बोलना था, तो सब इतना क्यों सोच रहे हो? गुड. Okay, that is a method overloading and method overriding. Okay, now first of all we will learn about the classes, some types of classes. In C# language already you have learned in the previous subjects में भी आपने learn किया है. Classes we have covered in the previous lectures. Classes and objects. Okay, classes, how to create class, how to create object that class, how to call the methods and variables or member of the classes to the object, that also we had covered in the previous lectures. Okay, classes are reference types that hold the object created dynamically in a heap. All classes have a base type of system dot object. All classes have a base type of system dot object. The default access modifier of a class is internal. If you will not declare any access modifier, अगर आप public protected कुछ भी नहीं लिख रहे हो, private नहीं लिख रहे हो, तो by default वो क्या होगा? Internal. Okay, the default access modifier of a class is internal. Yes, what is access modifiers? पता है सबको? पता है ना? What is access modifier? Types of access modifier: public, private, protected, all are the access modifiers. उसको क्या बोलते हैं? Access modifiers. Okay. The default access modifier of methods and variables का क्या है? Private. Okay, if you are not declaring any access modifier to the methods or variables को declare नहीं कर रहे हो, public, private कुछ भी declare नहीं करो, तो by default it will take the private. Okay, it will take as a private, वो लेगा किसको? Methods and variables को. So these points you should remember for the MCQ exams. ठीक है, जो points मैं आपको बता रही हूँ वो याद रखना है MCQ exams के लिए. नोट डाउन करके रखो. The default access modifier of class is करके क्वेश्चन होगा. 4 ऑप्शंस will be there: internal, protected, private, public. तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सेम इसमें भी ऐसे क्वेश्चन में डाल सकती हूँ. द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स इज. ओके, 4 ऑप्शन दिया होगा, आपको करेक्ट आंसर करना है. तो ये याद रखना है. ठीक है, रेड कर दी हूँ मैं उसको. तो ये सब ऐसे टाइप का क्वेश्चंस will be there in the MCQ exam. Directly inside the namespace, declaration of private class are not allowed. Directly inside the namespace, declarations of private classes are not allowed. Okay, what is the namespace? Namespace क्या था? Who will tell? What is namespace? Namespace क्या है students? What is namespace? What is namespace? Yes, Shahjad, what is namespace? जेरोल्ड, शोएब, कीर्ति, अबू बकर, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स में है. अभय, अभय इस बार एक्टिव नहीं है इन दिस सेमेस्टर. अभय नहीं पढ़ना है, आंसर नहीं देना है. कृतिका, नशरा. ओके, नशरा अभी ज्वाइन किया.
2-3 days से लेक्चर अटेंड करें. बाकी what is namespace? Abu Bakar, what is namespace? We had covered ना namespace, हमने देखा ना, with program भी देखा. Organize too many. Yes, organization of the classes. Too many class. Yes, okay. To organize the classes in proper way, the namespace is used. Okay, मतलब we can one type of folder you can say, but in the programs, okay, you are creating folder on the desktop tab create करते हो या तो C-drive folders create करते हो, वैसे you can create the namespace as a folder for classes. Okay, for the organized या तो you can say the collection of classes को करने के लिए you will define the namespaces. Okay, it work as a folder जैसे work करेगा, but we are using the namespace in the programs. तो ये program also we have covered, ये भी हमने cover किया था. ठीक है, concept clear हो गया. तो what is the line क्या दिया है यहाँ पे? The directly inside the namespaces declaration of private class are not allowed if we are declared the classes inside the namespace. Okay, तो वो class जो होगा वो private नहीं होगा. Private class are not allowed. Okay, we cannot assign the class as a private. Okay, we have to declare it public. Okay, public आप उसको असाइन करना पड़ेगा क्लास को. कभी जब आप डायरेक्टली इनसाइड द नेम स्पेस में क्लास डिक्लेयर करें एट दैट टाइम. ओके, so you should remember all these points. Okay, note down करते जाओ during the lecture. I told you कि please in my lecture come with the notebook and pen. जो points आपको लग रहा है note down it. Okay, एंड मोमेंट पे लिखने बैठोगे तो नहीं होगा. Okay, तो नोट डाउन करते जाओ. Yes, the following are types of classes in C# language. So abstract class. Okay, you know what is abstract class? The abstract class क्या करेगा? Hides करेगा details. Okay, details hide करेगा methods का class का. ठीक है. An abstract class is a class that provide a common definition to the subclasses, and this is a type of class whose object is not created. Okay, this is a class whose object is not created. Abstract classes are declared using the abstract keyword. We cannot create object of abstract class. If you want to use it, then it must be inherited in the subclass. Okay, these are the very main point. Okay, regarding the abstract classes, सब important है, आपको याद रखना है for the MCQ के लिए. Okay, कोई भी एग्जाम आप ऑनलाइन में कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो भी ये काम आएगा, ये जो concepts जो हैं. Okay, तो ये याद रखना है. Abstract class contains both abstract and non-abstract methods. We cannot create object of abstract class. हम लोग abstract class का object नहीं create कर सकते हैं. Okay, if you want to use it, अगर आपको उसको use करना है, then it must be inherited in a subclass. Clear, students? An abstract class contains both abstract and non-abstract methods. The methods inside the abstract class can either have an implementation or no implementation. Again, this is the main point. The method inside the abstract class. आपने abstract method सुना है, ठीक है? Interface has an abstract method and final variables. ऐसा ही है ना? Interface में आपने declare किया ना abstract methods. Okay. The methods inside the abstract class. When you are declaring the class as an abstract, तो उसका जो methods है उसको it may have implementation or no implementation. ठीक है, तो आप उसको जो methods define करे हो inside the abstract class, तो आप उसको implementation मतलब उसको methods को abstract रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो. ठीक है. We can inherit two abstract classes. In this case, the base class method implementation is optional. ठीक है, ये okay, इसको leave it, इतना important नहीं. An abstract class has only one subclass. This is again important point. An abstract class has only one subclass. Abstract class has only one subclass. Why? Because abstract class को अगर हमको use करना है, we cannot create the object of abstract class. हम उसका object create नहीं कर सकते. You have to inherit in a subclass में आप उसको inherit करना पड़ेगा. But एक ही subclass होगा. कितना? Abstract class को एक ही subclass होगा. Methods inside the abstract class cannot be a private. आप जो abstract class declare करे हो, sorry, abstract class में जो method declare करे हो, it cannot be private. Obviously, अगर वो private रखोगे आप तो उसको inherit कैसे करोगे? Abstract class को आप you cannot create the object of abstract class. आप abstract class को object नहीं create कर सकते, उसको inherit करना पड़ेगा. ठीक है, if उसको inherit करे हो तो methods कैसे होगा? Public ही होना रखोगे. Public रखोगे that then it will inherit it. Otherwise private रखोगे तो वो नहीं काम करेगा. ठीक है, तो ये जो points है, points are related to each other. ये आपको दिमाग में बिठाना है कि
we cannot create object of abstract class को object हम लोग नहीं create कर सकते, we have to inherit it. अगर उसको हम लोग inherit करें तो उसमें जो methods है वो private नहीं होगा, उसको public ही करना पड़ेगा. When you will keep the method as a public, then and only then you can inherit that methods in the subclass on, and only one subclass is there. Okay, तो ये आपको याद रखना है. If there is at least one method abstract in a class, then class must be abstract. If there is at least one method abstract in a class when you are declaring class, ठीक है, आप कोई क्लास डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, अगर वो क्लास में आपने कोई एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है, when you are declaring any one method as a abstract within the class, तो वो पूरा क्लास क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट ही उसको हम लोग बोलेंगे. Okay, if there is at least one method abstract in a class, then the class must be abstract. Okay, the class must be abstract. इसके पहले हमने देखा how to create class, how to create object, ठीक है, हमने कवर किया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पीपीटी में. I already shared this that PPT in the Google क्लास में भी मैंने शेयर किया है, उसमें चेक करना, ठीक है. हाउ टू क्रिएट क्लास एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, देन इनहेरिटेंस भी हमने कंसेप्ट क्लियर किया. तो ये इसीलिए उसके बाद मैंने ये टॉपिक कवर किया टाइप्स ऑफ क्लासेस के बाद. ओके, तो दिस इज एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास अकाउंट इज अ क्लास ऑफ क्लास नेम, इट इज एब्स्ट्रैक्ट टाइप. देन पार्शियल क्लासेस. ओके, आपको जस्ट याद रखना है टाइप्स ऑफ क्लासेस इन C# लैंग्वेज. एब्स्ट्रैक्ट क्लास, partial class. Okay, it is a type of class that allows dividing the properties, methods and event into multiple source file, and at compile time these files are combined into the single class. Okay, partial class, if you are declaring class as a partial, ठीक है, तो आपको क्या करने देगा, allows dividing the properties मतलब variables. Okay, methods and events, properties मतलब variable, methods, members, properties all are the same words. Okay, methods and functions both are same, and events, what is the event, वो हम लोग वेब डिजाइनिंग जब स्टार्ट करेंगे ना यूनिट 2 में, तब आपको समझ में आएगा what is event. Okay, into multiple source files, and at compile time these files are combined into the single class. Okay, the following important क्या याद रखना है, all the parts of the partial class must be prefixed with the partial keyword. Okay, मतलब आपको क्लास को पार्शियल डिफाइन करना था, आपको उसको पार्शियल लिखना पड़ेगा. If you seal a specific part of the partial class, then the entire class is sealed. The same as for an abstract class. ठीक है, अगर आप सील करे हो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पार्शियल क्लास, देन एंटायर क्लास सील हो जाएगा. सील क्लास अगर आप डिफाइन करो, ठीक है, क्लास को सील या तो कोई मेथड, इफ यू आर डिक्लेयरिंग एनी मेथड एज अ सील डिफाइन करोगे, तो वो जो पूरा क्लास है वो भी सील हो जाएगा. ठीक है, इनहेरिटेंस कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द पार्शियल क्लासेस. इनहेरिटेंस इज नॉट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन दी पार्शियल क्लासेस. हम लोग इनहेरिट क्रिएट नहीं कर सकते, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमको इनहेरिट करके ही यूज करना है. ठीक है, तो पॉइंट्स याद रखो. जो रेड में किया है that you should remember. ठीक है, I will send this file, word file. In the classes that are written into two classes, files are combined together at the runtime. ठीक है, ये जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे वेब उसमें, तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा. अभी के लिए याद रखो, पार्शियल क्लासेस का हम लोग इनहेरिटेंस नहीं कर सकते. ठीक है, एंड अगर उसको क्लास को पार्शियल डिफाइन करना है तो यू हैव टू राइट द पार्शियल कीवर्ड. आपको पार्शियल कीवर्ड लिखना है. Okay, if you seal a specific part of partial class, then the entire class is sealed. The same as for an abstract class जैसा. Okay, then sealed class. Yes student, you have already learned all these types of classes. ठीक है, आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है जावा में एंड C++ लैंग्वेज में. ठीक है, तो वही टाइप से क्लासेस है, मीनिंग भी वही है, कोई चेंज नहीं है. A sealed class is a class that cannot be inherited and used to restrict the properties. Okay, the sealed class, what is sealed class? A sealed class is a class that cannot be inherited. उसको हम लोग इनहेरिटेंस उसका क्रिएट नहीं कर सकते, and used to restrict the properties. ये सब हो गया है ना, ये ऑलरेडी लर्न ना. अब टॉपिक याद नहीं हो अलग बात है, बट यू ऑलरेडी कवर ऑल दिस, यू ऑलरेडी लर्न ऑल दिस टॉपिक्स. ओके, ये टाइप्स ऑफ क्लासेस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको सिलेबस में था, C++ में भी था एंड जावा में भी आपको था ये. ठीक है, तो कंसेप्ट भी सेम है, सिंटैक्स भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें. क्लियर? A sealed class is a class that cannot be inherited and used to restrict the properties. मैं ये पूरा डिटेल्स में हर एक क्लासेस का प्रोग्राम नहीं कर सकती, बिकॉज हमारे सिलेबस में उतना डिटेल नहीं है. ठीक है, अगर हम लोग वो करने जाएंगे तो हमारा जो मेन वेब एप्लीकेशन जो है डिजाइनिंग वगैरह वो रह जाएगा. ठीक है, सो आपको मैं शॉर्ट में ये रिवाइज करवा रही हूँ. ठीक है, मैं इसको सेल्फ स्टडी में मुझे देना था बट नहीं दिया, क्योंकि देती तो आप लोग नहीं पढ़ते. ओके, इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, एक बार इसको इजीली इसको याद
लेना, बट इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज इन अवर सिलेबस. टाइप्स ऑफ क्लासेस करके है. सील क्लासेस क्रिएटेड यूजिंग सील कीवर्ड, वो हर एक ठीक है. एक्सेस मॉडिफायर्स आर नॉट अप्लाई टू दिस सील क्लास. एक्सेस मॉडिफायर वी कैन नॉट अप्लाई टू दिस सील क्लास. ओके, ए सील क्लास इज अ क्लास दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड. उसको हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट apply the access modifier, okay, to this seal class. To access the seal members we must create object of the class. हमको क्या करना पड़ेगा, वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. अगर कोई क्लास डिफाइन किया है हमने सील क्लास एज अ सील, तो मेंबर्स ऑफ दैट क्लास इज ओके. एक्सेस करने के लिए, वो मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए we must create object of that class, seal class. Okay, then static class. Okay, static class, you know what is static class. Okay, it is a type of class that cannot be instantiated. In other words, we cannot create object of that class using the new keyword. Okay, so that the class members can be called directly using the class name. Okay, static class जो आपको पता है वही चीज है, और nothing is new in this topic. Okay, static class, the static class मतलब क्या, we cannot create the object of static class using the new keywords. हम लोग नहीं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते. ठीक है, clear, so that the class members can be called. If you want to access the class member, तो आपको उसको डायरेक्टली एक्सेस करना है यूजिंग द क्लास नेम से. क्लास नेम से यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द क्लास मेंबर, बट नॉट यूजिंग द ऑब्जेक्ट. Why? Because we cannot create the object of static class. I hope students के आपको ये सारी चीजें पता है. ठीक है, मैं ये कवर नहीं करूंगी बिकॉज होल सिलेबस पढ़ा हुआ है .NET का. ये माइनर चीजें इफ आई विल गोइंग टू कवर देन इट विल टेक्स मोर टाइम. ठीक है, हमको टाइम लिमिटेशंस है सिलेबस के लिए, तो प्लीज उसका अगर इफ यू हैव कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज उसको नेट पे से देखो एक बार, जल्दी से स्मॉल प्रोग्राम्स घर पे ट्राई कर लेना. ओके, created static class is created using static keyword. Inside a static class only static members are allowed. Okay, in other words everything inside the static class must be a static. Static class के अंदर जो भी आप define करोगे वो पूरा क्या हो जाएगा, static. We cannot create of this, we cannot create object of static class. उसको हम लोग inherit भी नहीं कर सकते. It allows only a static construction to be declared. Okay, it allows only a static constructor to be declared. Okay, we cannot only we can create the constructor. ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं, बाकी उसको हम इनहेरिटेड वगैरह नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट कर सकते स्टैटिक मेथड का. The method of the static class can be called using the class name without creating the instance. Okay, उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, तो उसके जो मेंबर्स है, how we can use that members using the class name. Okay, using the class name. Clear? Types of classes, yes or no? जो रेड में मैंने किया है that you should remember. Clear students, please. Types of classes. Okay, abstract class, partial class, sealed class and static class. तो ये जो है वो नोट डाउन करके रखो. ठीक है, नोट डाउन ईच एंड एवरी टॉपिक ड्यूरिंग द लेक्चर्स के टाइम पे ही करो. ओके, ऐसे आप नहीं करोगे, आई नो. सो एट द लेक्चर्स टाइम प्लीज ये आप क्या करोगे, उसको नोट डाउन करोगे एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम. ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको आपका प्रैक्टिकल जो फाइल है दैट यू हैव टू सबमिट, प्लस ये जो आपका असाइनमेंट जो क्वेश्चन बैंक मैंने दिया उसके आंसर्स जो लिख रहे हो, प्लस ये जो लेक्चर्स का लिख रहे हो वो भी आपको सबमिट करना है अलग पीडीएफ में. ओके, तो मुझे समझ में आएगा कौन सा स्टूडेंट्स कितना क्लास में एक्टिव है, कैसे नोट्स बना रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज असेंबली. दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू, असेंबली. ओके, ये पूरा न्यू टॉपिक है. Okay, in this unit 1 we had covered the new topics like what is .NET framework हमने clear किया. Then how the .NET framework will work. CLR is a main component of .NET framework. .NET framework का पूरा figure हम लोगों ने देखा. Okay, CLR का working we had covered. Then for each loop is new for you. Then jagged array is new for you. Okay, namespaces जो है वो आप लोगों के लिए new था. That concept is also new. Then delegates is also new concept. Okay, delegates भी new concept हम लोगों ने पढ़ा. Now next is assembly. Next is assembly. Okay, assembly is also new for you. Okay, yes, what is MSIL? MSIL क्या है, कौन बताएगा मुझे? What is MSIL? जल्दी से बताओ. Microsoft Intermediate. Yes. Intermediate Language. Yes, Microsoft Intermediate Language.
ओके क्या है वो लैंग्वेज, कौन क्रिएट करता है, कब क्रिएट होता है, एंड व्हाट इज यूज ऑफ दैट लैंग्वेज, बताओ। चलो बच्चों बताओ, ओनली फुल फॉर्म से काम नहीं चलेगा। नाउ यू आर इन द टीवाई क्लास, सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल में, आपको याद रखना है, कंसेप्चुअल इसको याद रखो। मैम जो हम्म मैम जो हम लोग को जो लैंग्वेज टाइप करते थे C++ हम्म और पाइथन करके, वो जो लैंग्वेज है ना उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है मैम। कौन मशीन कोड में कन्वर्ट करता है? मैम MSL एम IL। एस, नो, नो, नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। यस, और कोई ट्राई करेगा? मैम जो सोर्स कोड होता है वो लैंग्वेज कंपाइलर उसको MSIL कोड में कन्वर्ट करता है, फिर Yes. जस्ट इन केस कंपाइलर MSIL कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता यस, गुड, ओके, ये याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाओ। यस स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछो, मुझे पूछोगे तो आई विल क्लियर योर डाउट। तो मुझे लगेगा सबको सब आता है। ओके जेरोल्ड, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है, व्हाट इज MSIL कोड? माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। इट इज अ इंडिपेंडेंट कोड. When you are writing your program, your source code in any type of languages in the .NET framework, at that time the respective language compiler will convert. Okay, what word I am using? The respective language compiler will convert your source code into the MSIL code, Microsoft Intermediate Language Code. MSIL code is an independent code. Okay, वो कोई particular language पे dependent नहीं, it is an independent code. .NET understand only MSIL code, Microsoft Intermediate Language Code. Okay, and then just-in-time compiler जो है JIT compiler will convert this that MSIL code into the machine code, into the machine code. Clear? Yes or no students? Please दिमाग में इसको फिट करके रखो। जो प्रोसेस जो है, आई हैड एक्सप्लेन दैट प्रोसेस विद द फिगर। जो फिगर है वो दिमाग में सेट करके रखो, ऐसे रट्टा मारोगे तो नहीं चलेगा। यू शुड रिमेम्बर, ओके, कंसेप्चुअली इसको याद रखो कि एवरी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है दैट विल कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द IL code, मतलब intermediate language code, and then just in time compiler will convert that IL code into the machine code, native code. Clear now? Yes or no? Yes or no? अभी किसी Yes, को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। तो दिस इज अ वर्किंग ऑफ CLR. द मेन टास्क ऑफ CLR इज कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द नेटिव कोड, मशीन कोड। बट ये जो पूरा प्रोसेस है उसके बीच में ये होता है, ये वाला प्रोसेस। व्हाई ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज .NET फ्रेमवर्क सपोर्ट द मल्टीपल लैंग्वेजेस। मैंने आपको पहले ही बताया, द स्टूडेंट्स जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? यूजिंग दी वन कॉमन लैंग्वेज, हिंदी। इफ यू आर गोइंग टू एनी अदर स्टेट, कोई और स्टेट में जाते हो केरला में, तो यू डोंट नो दैट लैंग्वेज, उनको आपका लैंग्वेज नहीं पता, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? थ्रू द हिंदी लैंग्वेज। ओके, तो ऑल ओवर इंडिया में कौन सा लैंग्वेज कॉमन है? हिंदी लैंग्वेज इज अ कॉमन फॉर ऑल द पीपल्स। तो सेम वैसे ही अंडर द .NET फ्रेमवर्क वी कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो वो .NET फ्रेमवर्क को कैसे समझ में आएगा हर एक लैंग्वेज का? तो फॉर दैट पर्पस द लैंग्वेज कंपाइलर्स विल कन्वर्ट source code into the IL code, MSIL code, machine Microsoft Intermediate Language Code. Clear? ओके, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो ही आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। बाकी ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, टाइप्स ऑफ क्लासेस, वो सब तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बट व्हाट इज न्यू इन दिस सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट्स में क्या न्यू है, आप क्या न्यू कर सकते हो, वो आपको सोचना है प्लीज। एंड whenever you will come in the lecture, please come with the fresh mind के साथ आओ, because this is a practical subject, not a theory subject. जितना एक्टिव रहोगे, ठीक है, उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। ओके, यस। नाउ असेंबली. व्हाट इज असेंबली? An assembly is a file that is automatically generated by the compiler. Okay, see, an assembly is a file that is automatically generated by the compiler upon successful compilation of every .NET application. Okay, whenever you will run your application
फर्स्ट टाइम ओके आपने हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन किया, हमने कंसोल एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। फर्स्ट हमने कंसोल एप्लीकेशन बनाया, व्हेन उसको हम लोग जब रन करेंगे, ठीक है, जब उसको हम लोग रन करते हैं at that time the assembly file is automatically generate हो जाएगा. What is assembly? Assembly is a file. It will automatically generated. वो automatically generated होता है by the compiler. .NET framework will automatically generate the assembly file. कब generate करेगा automatically? When you will compile. Okay, जब आप फाइल को कंपाइल करते हो मतलब जब रन करते हो, जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हो पहले कंपाइल होता है फॉर एरर चेकिंग के लिए, देन वो रन होता है, ठीक है। तो जब वो रन करते हो, कंपाइल करते हो, एट दैट टाइम आपका असेंबली फाइल जनरेट होता है। एंड वो असेंबली फाइल में क्या है वो हम लोग देखेंगे, नीचे आएगा व्हाट इज द इन द असेंबली फाइल। पहले समझो व्हाट इज असेंबली फाइल। इट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द कंपाइलर when the successful compilation of every .NET application, successful compilation बोला है, सक्सेसफुल मतलब विदाउट एरर, जब आउटपुट डिस्प्ले होगा तभी सक्सेसफुल कंपाइलेशन ऑफ एवरी .NET एप्लीकेशन। ओके, इट कैन बी आइदर ए डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी और एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, डीएलएल फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे याद करवाना व्हेन वी विल रन प्रैक्टिकल्स ना इन द .NET फ्रेमवर्क, तो ये फाइल डीएलएल फाइल भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। कहाँ पे जनरेट होगा? इन दी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो था हमारे राइट साइड में, जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो था, ठीक है, वहाँ पे दिस फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी और एग्जीक्यूटेबल फाइल, और यू कैन से एग्जीक्यूटेबल फाइल डीएलएल करके वो फाइल का एक्सटेंशन होता है .dll करके। आई विल शो यू प्रैक्टिकल जब करें मैं आपको बताऊंगी। इट इज जनरेटेड ओनली वंस, okay, it is generated only once for an application and upon its subsequent compilation the assembly gets updated. okay, जब फर्स्ट टाइम उसको रन करो एप्लीकेशन, मैंने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन किया, मैं फर्स्ट टाइम मैं इसको रन करूंगा तो एट दैट टाइम इट विल जनरेट, वो जनरेट होगा। उसके बाद मैं जितनी बार भी मेरा एप्लीकेशन रन करूँ तो वो असेंबली फाइल क्या होता जाएगा? अपडेट होता जाएगा। मतलब हर एक बार रन करो हर एक बार असेंबली फाइल जनरेट हो रहा है न्यू, ऐसे नहीं है। व्हेनेवर फर्स्ट टाइम जब आप उसको रन करोगे ना तभी असेंबली फाइल जनरेट होगा। उसके बाद उसको आप रन करो एक ही प्रोग्राम बार बार, या तो एक ही एप्लीकेशन बार बार रन करो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बना के, तो वो क्या करेगा? ओनली वो असेंबली फाइल है उसको अपडेट करता जाएगा। क्या अपडेट करेगा हम लोग देखते हैं, ठीक है, नीचे है। The entire process will run in the background of your application. There is no need for you to learn deeply about assemblies. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, just it is the file automatically generate होता है, but as the IT student we have to know के और जब व्हाट इज असेंबली फाइल ये हमको ही पता है, ठीक है। जो 12th के बाद या तो ग्रेजुएशन के बाद सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं .NET का, उनको ये सारी चीजें नहीं पता होता, ठीक है, वो जस्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करके अपना आउटपुट आता है। बट ये जो सारी चीजें जो है वो डिटेल्स में हमको ही पता है। ओके, the entire process we run in the background of the applications, ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, उसको हमको जनरेट नहीं करना है, असेंबली फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। बट हाँ, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में दिखता है तो एट द टाइम आपको पता होना चाहिए व्हाट इज असेंबली फाइल, व्हाट इज डीएलएल फाइल, ठीक है, इसलिए है। ओके, नाउ कैसे क्रिएट होता है, कब क्रिएट होता है वो तो हम लोगों ने देख लिया, बट क्या होता है उसमें, what the assembly file contains. Okay, so an assembly file contains intermediate language code. Okay, assembly contains intermediate language code. IL code वो contain करता है, क्या contain करता है? IL code, intermediate language code. And what is intermediate language code? Now you know. अभी आप लोगों ने आंसर दिया कि जो जितने भी लैंग्वेजेस हम लोग यूज कर सकते हैं अंडर द .NET फ्रेमवर्क, तो जो भी लैंग्वेज हम लोग यूज करें, जो भी लैंग्वेज का यूज करके वी आर राइटिंग द सोर्स कोड, तो वो लैंग्वेज का कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा आईएल में। तो दैट आईएल का डेफिनेशन, जो आईएल कोड जनरेट होता है ना, उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? असेंबली में होता है, तो ही .NET को समझेगा ना। मैंने बोला आपको कि .NEट को आईएल समझता है, बट कैसे समझता है? वेयर इट विल स्टोर, वो कहाँ पे स्टोर होगा तो .NET को समझेगा, तो इट विल स्टोर इन दी असेंबली फाइल में, वो ऑटोमेटिकली असेंबली फाइल जनरेट हो जाता है, ठीक है। दैट इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस, हमको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, दैट इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस, बट हमको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एक ही वर्ड बोली .NET अंडरस्टैंड आईएल, .NET अंडरस्टैंड आईएल, बट कैसे? ऐसे, ठीक है। ये असेंबली जो फाइल है उसमें पूरा कोड सेव होता है, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इन द .NET लैंग्वेज it consists of metadata. Okay, metadata also stored in the assembly. What is metadata? Data about the data. Okay, detailed description about the code, detailed description of the your application का वर्जन, जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन वो भी स्टोर होगा। आईएल तो मेन कंटेंट है, आईएल तो स्टोर होगा, प्लस डिटेल इंफॉर्मेशन जो है इट विल आल्सो स्टोर। metadata enumerates the feature of every type inside the assembly or the binary. वो जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है
वो कौन से टाइप्स का है, क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन, मेटाडेटा मतलब क्या, डिटेल इंफॉर्मेशन, ओके, वो स्टोर होता है. मतलब in the assembly file IL interpret code is stored plus metadata, okay, detailed description about the data वो भी स्टोर होता है. plus in addition to metadata assemblies also have a special file called manifest. okay, assembly one more information store, one more is files वो store करता है, that is manifest. what is manifest? The manifest contain information about the current version of assembly and other related information. मतलब assembly जो फाइल है वो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, what is the version of that फाइल, ठीक है, वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होता है, मैनिफेस्ट फाइल में. और मैनिफेस्ट फाइल कहाँ पे होता है, असेंबली में होता है. ठीक है, it contains information about the current version of the assembly, other related information. In .NET there are two kind of assembly, okay, such as multi and single file assembly. Multi file assembly, single file assembly. What is multi and single? A single file assembly contains all the required information, IR, metadata and manifest in a single package. Okay, every assembly will contain IL code, metadata code and manifest file. IL मतलब कि आपको पता है intermediate language, metadata भी आपको पता है detailed description about your code. okay, पूरा detail information, कौन सा data type use किया है, कितना byte है, कितना size है, all information, detail information called metadata. and manifest, manifest मतलब क्या, जो assembly उसका version क्या है, it depends on your Microsoft Visual Studio का जो version आप इंस्टॉल करोगे उसके बेस पे उसका वर्जन होता है. तो मैनिफेस्ट मतलब उसका वर्जन्स वगैरह इंफॉर्मेशन स्टोर होगा ये पे. तो सिंगल फाइल, अगर हम लोग सिंगल फाइल असेंबली है, इट कंटेन्स ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन सिंगल पैकेज. ओके, एंड द मेजॉरिटी ऑफ असेंबली इन .NET आर मेड अप ऑफ सिंगल फाइल assemblies. What is multi-file? The multi-file assemblies are composed of numerous .NET binaries or modules and are generated for larger applications. ठीक है, one of these assembly will contain manifest and other will have IL and metadata instruction. मतलब क्या, एक से ज्यादा असेंबली फाइल जनरेट होता है, बट कब जनरेट होता है, जब आपका प्रोजेक्ट जो एप्लीकेशन जो बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़े उसमें इंडस्ट्री में कोई बड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है, डेटा बहुत ज्यादा है, सोर्स कोड जो बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप जो प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो यूज करोगे, उसमें जो फाइल्स बनाओगे दे आर ऑल स्मॉल, प्रोजेक्ट भी आपका स्मॉल है. बट इंडस्ट्री में जो रियल टाइम्स प्रोजेक्ट्स चलते हैं, ठीक है, जो रियल टाइम्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उस बहुत बड़ा कोडिंग जो होता है, बहुत लार्ज एप्लीकेशन होती है, एट दैट टाइम मल्टी फाइल असेंबली क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली. होता है, वो हमको कुछ नहीं करना है. ठीक है, बेस्ड ऑन आवर एप्लीकेशन का जो साइज है उसके बेस पे दे विल जनरेट. ओके, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा, उसमें हमको कुछ नहीं करना है. क्लियर? व्हाट इज असेंबली? द मेन बेनिफिट ऑफ, ठीक है, ये IL के बारे में लिखा है. The main benefit of IL is power to integrate with all the .NET languages. This is because all .NET language produce the same IL code upon successful compilation. Hence, they can interact with each other very easily. ठीक है. For example, आपने Java in the .NET framework you are using Java use करे और Java use करके एक प्रोग्राम लिखा. Same program you are writing using C# language. Okay, same program C# language यूज करके लिख रहे हो. जब आप उसको रन करोगे तो दोनों का IL कोड सेम ही जनरेट होगा. दोनों का IL कोड क्या होगा, सेम ही, कॉमन ही जनरेट होगा, क्योंकि प्रोग्राम सेम है. ओनली सिंटेक्स चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, बट प्रोग्राम चेंज है. एडिशन का प्रोग्राम जावा में करो एंड C# लैंग्वेज में करो, लॉजिक भी सेम होगा, आउटपुट भी सेम होगा. चेंज क्या होगा, सिंटेक्स. तो ऑब्वियसली उसका IL कोड भी क्या होगा, सेम प्रोड्यूस होगा. ओके स्टूडेंट, प्लीज रिजॉइन करो, रिजॉइन. ओके, ये रिजॉइन करो. So this is what about the assembly file. Okay, so you have to remember assembly. What is assembly? Types of assembly, the extension of assembly. Okay, and what information stored in assembly. All these points you have to remember for your MCQ exams. Clear? Okay, rejoin करो, ये भी खत्म हो जाएगा. Please rejoin. How many students are there? 15. Okay, I want 15 students again. मुझे ये सारे 15 स्टूडेंट्स चाहिए. ज्वाइन करो. ओके, टाइप्स ऑफ क्लासेस एंड असेंबली. नाउ वी विल सी द ओवरलोडिंग